last lecture we have learned about what meaning of hypothesis and why hypotheses are required, and what are the various types of hypothesis, wherein we have learned about various types of hypotheses like statistical hypothesis. Let me recap it again, right? Yes. So abstract hypothesis versus measurable hypothesis. Abstract hypothesis says that there is no, it's a theoretical only. We cannot test it. Just we can observe and we can give conclusion. Measurable hypothesis, we can measure actually, right? And we can test it. Descriptive hypothesis describe something, right? Relational impact of something on that, right? For example, average age of men and women are different. So that is descriptive hypothesis. But relational hypothesis is higher the weight, higher the disease, right? Like that, relational. Null alternative, these are the statistical hypothesis, and that we are going to learn in deep in this lecture. Null and alternate hypothesis. Exploratory and explanatory. Exploratory, which explore something. Explanatory, which explain the relationship, right? Directional and non-directional, that we have learned. Working hypothesis, somebody has said already, working hypothesis. And last is statistical hypothesis and common sense hypothesis, right? So this we have learned. In this session, we are going to learn about another point, hypothesis testing procedure. We know that we have to frame hypothesis, right? Now, how to test and hypothesis, you know, these are the population. Population means the entire things. For example, opinion poll of all Gujarati people. All Gujarati people are like this population. But the सब जो गुजराती people है वो population है. Population मतलब वस्ती इसमें नहीं है. Set of all things, right? For example, we talk about medicine that we produce. तो सब मेडिसिन जो हमारी फैक्ट्री में बन रहा है वो पॉपुलेशन बोलते हैं. And to check whether certain content is there or not, we take what? Samples. So one of the is a sample and is a population. This all is a population, right? Population and sample. And we take a sample and we infer about what? Population. And their role of hypothesis come, right? Role of hypothesis come. So how to test this hypothesis, whether that content is there or not? We have so far discussing about impact of social media on health, for example, health, or example was marks, right? Marks of SAM 3. This was the thing, right? We want to study this, whether there is impact or not, right? So this hypothesis and these things, how to test whether there is impact of social media on marks or not, how to measure that, right? For that we need to go through what? Hypothesis testing procedure. हाइपोथेसिस की प्रोसीजर होती है वो टेस्ट करने के लिए, और बाद में पता चलेगा कि इज देयर एनी इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मार्क्स और नॉट, राइट? ऐसे ही नहीं बता देंगे. एंड व्हाट इज हाइपोथेसिस? टेंटेटिव assumptions about the results of our study. So results of study, no effect is the tentative assumption. There is no effect. Now we will test it, right? And will tell them that whether there is an impact or not. This whole procedure is called hypothesis testing procedure. For example, आपको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या होता है? टेस्टिंग होता है.
उसके लिए क्या होता है, टेस्टिंग होता है, राइट। तो टेस्टिंग कैसे होता है, तो आपके पूरे जो बॉडी में से, मतलब फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड है कि नहीं, राइट, पूरे लहू में से थोड़ा लहू लेके वो इंफर करते हैं यहाँ है, बाद में लेबोरेटरी में ले जाते हैं ना, लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में जो टेस्ट लगाते हैं ना, बाद में आपको बोलता है कि आपको ये डिसीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये प्रोसीजर करनी पड़ती है, एंड एट द एंड ऑफ दैट प्रोसीजर वी इन्फर समथिंग, इन्फर समथिंग मतलब वी कंक्लूड समथिंग कि इम्पैक्ट है या नहीं है, राइट। ऐसे ही नहीं बोल सकते, right, without base we cannot say anything. Yes, we can assume, and that's why it's called hypothesis, it is not fact, right. So let's start. What is the hypothesis testing procedure? There are 7 steps, and many authors has given 5 steps, but we made it 7 steps because the 7 step will completely make you understand about hypothesis testing. In semester 4 you will have ANOVA, right, analysis of variance. There also same procedure you need to follow. आपके सेम 4 में एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करके एक टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट, इसमें आप ये स्टेप्स इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, डिटेल में आज पूरा सेशन यहां डेडिकेट करेंगे, एंड डिटेल में हम सीखने जा रहे हैं। तो आपको हाइपोथेसिस, किसी भी रिसर्च कर रहे हैं आप, और हमारा रिसर्च वही है, सोशल मीडिया एंड योर मार्क्स, राइट, ऑफ सेम 3, और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमने ऑलरेडी कर दिया है। ये एग्जाम्पल तो होगा ही होगा, बाद में दूसरे एग्जाम्पल्स भी मैं दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि हाउ टू टेस्ट, राइट, प्रोसीजर क्या होती है। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप इज स्पेसिफाई द नल हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए पहले तो सेट तो करनी पड़ती है ना हाइपोथेसिस, वैसे कैसे होता है। चलो एक बात बताओ, आपको है ना हिमालय चढ़ना है, राइट, चलो एक बात करते हैं, राइट, यहाँ आपको है ना हिमालय चढ़ना है, मान लो, राइट, और हिमालय चढ़ना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होना चाहिए, वेरी गुड। क्लाइंबिंग गियर्स, क्या 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 संदीप, क्लाइंबिंग गियर्स सर, क्लाइंबिंग, ओके, गियर्स, देन राइट, बाद में क्या होना चाहिए, फूड, बाद में हाँ, फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर होना चाहिए, वेरी गुड। बाद में फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, अगर लग गया गिर गए, फर्स्ट एड बॉक्स, वेरी गुड। और सेल्फ बिलीव सर, वी कैन डू इट, क्या, सेल्फ बिलीव सर कि मैं चढ़ पाऊंगा ऐसा, हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, वेरी गुड, राइट। बट आप इस सब में आप भूल गए हो कि हिमालय चढ़ने के लिए पहले तो हिमालय चाहिए, इजंट इट। हिमालय नहीं होगा तो क्या करेंगे, हिमालय चढ़ने के लिए पहला क्या होना चाहिए, हिमालय होना चाहिए। वैसे ही मेरे बच्चों, ये रहा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, पहले हाइपोथेसिस होनी चाहिए, बाद में टेस्ट करेंगे ना। तो क्या करेंगे, specify the null hypothesis. As I said that hypothesis testing procedure होती है, तो we use statistical hypothesis। ऐसे ही नहीं होता, टेस्ट करना होता है तो स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, हमारे पास नंबर्स होने चाहिए, राइट। तो स्पेसिफाई नल हाइपोथेसिस। स्टेप 2, नल हाइपोथेसिस के साथ ही हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी हो जाएगा, राइट। स्टेट द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, मतलब क्या, H0 एंड H1 ये करना है। H0 you better know now is a null hypothesis and this is alternate hypothesis. Somebody write A, right?
somebody write 1, somebody write A, B, A, C, whatever. Okay, so it's one and same, and this is null hypothesis. If there are many null hypotheses, H naught or H naught A, ऐसा करते हैं, right? Step 3, set the significance level, that is alpha. This is called alpha. मैं समझाऊंगा क्या क्या है, right? क्योंकि ये statistics आ गया, पूरा टेस्ट करना है तो ऐसे ही नहीं हो सकता है, right? Step 4, collect the data. We need to collect the data. Collection of your social media hours, collection of your marks, everything is required. So ये collection of data. Step 5, decide and perform a proper statistical test. What test you need to apply? For example, आपको बुखार आ रहा है ना, उसका CT स्कैन नहीं होता है, लेकिन आपको ब्रेन में बहुत सारी तकलीफ हो रही है तो होगा. आपको आंखों में तकलीफ है ना, तो इसके लिए ब्लड टेस्ट शायद नहीं होता है, राइट? तो प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए. आई मीन दैट प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए. जो जो फाइंड करना है उस पर टेस्ट होना चाहिए, राइट? आपको मान लो कि खुजली हो रही है, राइट? तो खुजली हो रही है तो आपका मतलब कोई ऐसी बाहर से लगाने की दवा होती है तो उसके अलग अलग होता है, मतलब सब एक ही नहीं होता है. So calculate the test statistics and corresponding p value. हम समझेंगे, अभी पता नहीं चलेगा आपको लगेगा कि सर ये क्या बहुत मतलब डिफिकल्ट शब्द बोल रहे हो. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग p वैल्यू, ओके, वो करेंगे. स्टेप 6, ड्रॉइंग ए कंक्लूजन. कंक्लूड करेंगे भाई, क्या करेंगे? इम्पैक्ट होती है या नहीं होती है, या कंक्लूड करेंगे, right? Decide whether null hypothesis is supported or refuted. Supported मतलब yes, नहीं है. Refuted मतलब हाँ है, मतलब नहीं है ऐसा नहीं है, मतलब है, right? And step 7, present your findings. बहुत सारे बच्चे बाहर रह गए नहीं ना. Present your findings. आपको क्या करना है? आपका findings present करना है. तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीपीटी भी मिल जाएगी. ये आपकी ही पीपीटी है, जस्ट मैंने बनाई है, मतलब आपको आपकी ही पीपीटी है और मैं यूज कर रहा हूँ, राइट? सो प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स. आपका फाइंडिंग्स क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज रिसर्च और रिसर्च का पार्ट है तो हम बताएंगे. तो दिस 7 स्टेप वी आर गोइंग टू लर्न. पता चल गया? स्टेप 1 null hypothesis. Step 2, alternate hypothesis. Step 3, set the significance level. क्या है significant level, क्यों होता है, क्या होता है, ये सब सीखेंगे. बाद में कलेक्ट करके प्रॉपर टेस्ट अप्लाई करके एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं और बाद में लिख देना है. सिंपल बात है, राइट? स्टेप बाय स्टेप लेट्स लर्न. फर्स्ट स्टेप, स्पेसिफाई द नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? एनीबडी? मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं नल हाइपोथेसिस का मतलब. Null hypothesis assume that it's not that negative. It assume that there is no relation, there is no difference, the person is not guilty, there is no impact, there is no association. ऐसा कुछ बोलते हैं ना, it's a null hypothesis. मतलब मान लो कि आपने चंद्र पे पैर नहीं रखा है, किसी ने नहीं रखा है, तो आप ऐसा मान के नहीं चलना कि वहां पानी होगा, ऐसा मान के चलना कि पानी नहीं होगा, क्योंकि जनरली नहीं होता है ना. हमको पता नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि है, राइट? नहीं है कह सकते हो तो बाद में सर्च करेंगे, है तो बता देंगे, राइट? तो ये नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H नॉट, राइट? व्हाट इट मींस दैट देयर इज नो इफेक्ट. मतलब आप 50 घंटा तो ज्यादा बोल गया, लेकिन आप दिन में 10 घंटा भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, आपके मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा एजम्पशन में करूंगा, एज ए हाइपोथेसिस में रखूंगा, वो बोला जाएगा नल हाइपोथेसिस. देयर इज नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप है नहीं. देयर इज नो डिफरेंस,
बिटवीन टू ग्रुप्स, मेल एंड फीमेल के वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी मुझे तो पता नहीं है ना डिफरेंस है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा नहीं है अभी डिफरेंस, बाद में हम सोचेंगे है कि नहीं है, राइट। तो ये अगर ये स्टेट किया जाए, ऐसे बताया जाए, इट्स कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, एंड नल हाइपोथेसिस डिनोटेड विद एच नॉट। ओके, चलो हमारा, मान लो कि हम कोई आया ना, ओके, मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारे मार्क्स पे पड़ते हैं कि नहीं पड़ते वो देखना है। तो हम कैसे स्टेट करेंगे, कैसे बताएंगे? तो राय ये लिख सकते हैं, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूसेज in the bracket hours on marks of students of research methodology of SAM 3, क्योंकि हमारा जो हाइपोथेसिस मतलब हमारा स्टडीज है वो है। अब ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, फुल स्टॉप कर सकते हैं, दिस इज यू कैन स्किप बिकॉज ये स्टडी में यही होता है ना, तो ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो वेदर men are better और women are better in terms of marks, हमारे डिपार्टमेंट की लड़कियां और हमारे डिपार्टमेंट के लड़के, राइट। तो इसमें कौन आगे है, मार्क्स में कौन आगे है? तो नल हाइपोथेसिस में क्या सेट करूंगा, देयर इज नो डिफरेंस इन एवरेज मार्क्स ऑफ male and female students of department। समझ में आ गया? इट मीन्स दैट नो इम्पैक्ट, नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप। बारिश पड़ती है ना तो उसका क्रॉप पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर इफ आई एम स्टेटिंग दैट, इट मीन्स दैट दिस इज नल हाइपोथेसिस। समझ में आ गया सबको? मतलब यहां से स्टार्ट करना है। हम जनरली कहां से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द रिजल्ट, हमको पता नहीं है भाई, तो इसलिए नहीं है। जैसे जैसे जो कोर्ट में किसी आरोपी को रखा जाता है ना, तो जज ऐसे नहीं मानता कि ये गिल्टी है, राइट, ऐसे मानता है गिल्टी नहीं है। बाद में बताओ, ये वकील बोलेगा ऐसा है, वे वकील बोलेगा ऐसा है, बाद में जजमेंट देता है ना। पहले से मान के बैठे कि ये ना इसने खून किया है, तो क्या सुनाने की जरूरत है, दे दो उसको फांसी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो हम स्टेप 1 में ऐसे स्पेसिफाई करेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जनरली नो इम्पैक्ट, नो डिफरेंस, नो एसोसिएशन, राइट, नो चेंज, ऐसा शब्द जब आएगा तब हम क्या करेंगे, वो नल हाइपोथेसिस है ऐसा ऐसा समझेंगे और ऐसा फ्रेम करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या है, नल हाइपोथेसिस, राइट। अभी सेकंड आया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बिल्कुल रिवर्स है। हमने क्या बोला था कि देयर इज नो, फिर से मैं देख लेता हूं मैंने क्या बोला था, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूसेज ऑन मेल एंड फीमेल, राइट। तो यहां से अगर मैं नो निकाल दूं, राइट, नो निकाल दो, इसमें से नो नहीं, नेगेटिव क्या है भाई, नो है, इसमें नो 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 निकाल दू ना, तो मेरा क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, तो H1 क्या हो सकता है, देयर इज impact of social media on marks of SAM 3 स्टूडेंट्स। मतलब जो भी है आगे लिखा है वैसे ही मैं लिखूंगा, मतलब यहां से नो गायब हो जाएगा। मतलब है कुछ, कैसा है मुझे नहीं पता है, कितने तक है मुझे नहीं पता है, राइट, राइट, तो ऐसा होता है, राइट। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1
तो ऊपर क्या था, देयर इज नो डिफरेंस इन एवरेज मार्क्स ऑफ मेल एंड फीमेल, देयर इज डिफरेंस in marks of male and female student of Department of Business Studies, right? तो ये क्या हो गया, alternate hypothesis, इसको H1 H2 ऐसे बोलते हैं. Okay, तो alternative hypothesis, the statement that are is an effect or difference. देखो null hypothesis क्या है, no difference ऐसा कब बोलते हैं, और ये जो इफेक्ट है डिफरेंस है ऐसा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. ये क्यों जरूरी है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस? फॉर एग्जांपल ये है ना, बहुत सारे को शायद समझ में नहीं आता है, लेकिन H0 में भी आपका जो वेट है, मतलब एवरेज वेट ऑफ दोज हु आर अटेंडिंग दिस ऑनलाइन लेक्चर, राइट, अभी कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि 44 है, आई एम एज्यूमिंग, मतलब ये भी क्या हुआ, ये नल हाइपोथेसिस है. लेट मी टेल यू, इट्स ए नल हाइपोथेसिस. इट मींस दैट आई एम इन्फरिंग 44 है, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है. मतलब क्या हुआ कि ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ये भी नल हाइपोथेसिस है. इफ आई से के एवरेज वेट ऑफ दिस क्लास इज इक्वल टू 44 इज a null hypothesis. Alternate hypothesis क्या हो सकती है? Alternate, it may be greater than 44, may be lesser than 44 हो सकता है. तो ये null है, तो ये alternate है. मतलब ये अगर मैं ऐसे कर दूं, is not 44, H0 is H1 is not equal to 44. This is alternative hypothesis. Remember, if I am saying that value, this is test value, if I am stating this, it means that this is the only result. मतलब ये null hypothesis है, इसके अलावा कुछ नहीं है. मतलब एवरेज वेट 44 है, मतलब क्या हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं है, राइट, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इट मींस इट्स अ नल हाइपोथेसिस. एंड दिस इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. 44 किलोग्राम से ज्यादा या 44 किलोग्राम से कम अगर मैं ऐसा करता हूं, तो ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, राइट. इट मे बी दिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मे बी वन साइडेड और टू साइडेड. वन साइडेड और टू साइडेड मैं समझाता हूं. वन साइडेड क्या होता है, टू साइडेड क्या होता है. वन साइडेड और टू साइडेड, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दवाई बना रहा हूं, राइट, मैं एक दवाई बना रहा हूं और वो दवाई इफेक्टिव है कि नहीं, राइट. मतलब आप 1 किलोग्राम खाएंगे ना, तो आपका वेट 10 kg लेस होगा, राइट. 2 kg खाएंगे ना, तो 20 kg, ये एग्जाम्पल है, मतलब मान लेना नहीं और खुश हो जाना नहीं है, बिकॉज ये होने वाला नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल है देने के लिए, राइट. तो अगर मेरी दवाई इफेक्टिव है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, तो प्लस हो या माइनस हो, दोनों में इफेक्ट दिखती है, राइट. अगर मेरे 10 किलोग्राम बढ़ गया तो भी इफेक्टिव है ना, बढ़ाने के लिए क्या इफेक्टिव है, लेकिन आई वांट टू नो घटाता है या नहीं. ये दवाई आपका वजन घटाता है या नहीं घटाता है, तो उसके लिए क्या होगा, तो ये अभी का आपका वैल्यू है, राइट, अभी का ये वैल्यू है. तो अगर इस साइड जाएगा, मतलब माइनस 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 में जाएगा ना, तो वो इफेक्टिव है ऐसा मान सकते हैं. अगर प्लस प्लस जाएगा तो डिफरेंस तो आ रहा है, राइट. दिस 1 kg 10 kg होता है, प्लस होता है, लेकिन अवर इंटरेस्ट इज माइनस होता है कि नहीं. तो माइनस होता है कि नहीं, तो वो वन साइडेड है, एक साइड का देखना होता है. वैसे ही ये घटाने के लिए प्लस होता है कि कोई का मतलब वजन कम होता है तो दवाई बढ़ाने के लिए देते हैं, तो अगर घट गया तो नेगेटिव इफेक्ट है, तो इसलिए ये साइड पकड़ते हैं, तो वन साइड पकड़ते हैं. अगर आगे आएगा मैं बेल शेप ऐसा बताऊंगा, तो कोई भी नॉर्मलिटी का ये बेल शेप होता है.
तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अगर दोनों साइड करे तो ये टू टेल होता है। अगर एक साइड का हमको लगाना है तो ये वन टेल होता है। ओके, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैन बी वन टेल्ड, ओनली प्रोवाइड वन डायरेक्शन और लोअर, और टू साइडेड मतलब ये दोनों साइड। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू साइडेड। ओके, मतलब इसमें हाइपोथेसिस क्या होगी कि मेरी दवाई खाने से आपका वजन घटेगा, राइट। अभी घटेगा बोल दिया, मतलब बढ़ेगा तो भी डिफरेंस होता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है घटेगा। मतलब क्या हुआ कि मतलब हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस की क्या हो सकती है, द मेडिसिन is not able to decrease the weight, right? Alternate क्या होती है, is able to decrease, okay, और it not able to increase, तो ये alternate hypothesis होती है। तो हमको क्या करना है, specify the null hypothesis। Majority time वो नो निकालने से हमारा काम बन जाएगा, राइट। स्टेप थ्री, चलो हमने बोल दिया कि इफेक्ट नहीं है, ऑल्टरनेट में बोल दिया इफेक्ट है, राइट। अभी हम सेट द सिग्निफिकेंस लेवल इज कॉल्ड अल्फा, एमसीक्यू नंबर 45। ओके, सिग्निफिकेंस लेवल इज अल्फा। ओके, तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है और क्यों हम चेक करते हैं ऐसा, राइट। तो ये बहुत ही माने ना कि इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए। और जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से शायद समझा नहीं सकते, राइट। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, देखो हमारा ये पॉपुलेशन है, मान लो कि ये डिपार्टमेंट का सब स्टूडेंट्स का है, और हमारा एक ही गोल है ना अभी कि भाई सोशल मीडिया का यूसेज एंड मार्क्स पे इंपैक्ट होता है कि नहीं होता है, इतना जानना है हमको, राइट। कोई आया कि नहीं, सब आ रहे हैं ना। पेंडिंग में छे तो शू करिए बोलो, કોઈ એમને ફરીથી કરે। I am taking break for 2 minutes અને એમને કહો કે enter। चलो हो गए सब एंट्री। ओके, now most important point we are going to discuss, right?
So what is significance level, right? That point we want to discuss. And example, we carry out the social media usage in hours and your marks. Whether hours increase have impact on marks or not, right? Social media पे आप ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिंडर और जो भी है, पता नहीं बहुत सारे हैं, उसकी इफेक्ट होती है या नहीं होती है ऑन मार्क्स, वो चेक करना है। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सर क्या आया? तो मान लो कि हम क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट के सब जो स्टूडेंट है ना, डिपार्टमेंट के सब स्टूडेंट, सबको नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। या मान लो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, राइट? ये सैंपल लिया, इसमें से 30 बच्चे आए, 30, राइट, 30, और उसका मेजरमेंट किया। हमने क्या किया कि भाई उसका डेटा कलेक्ट किया, राइट? ये डेटा कलेक्ट किया, और बाद में इसमें जो भी कंटेंट था उसके मुताबिक हम क्या करके इसका मार्क्स हमने लिया और उसका सोशल मीडिया यूसेज लिया, राइट? और इम्पैक्ट मेजरमेंट किया हमने, कोरिलेशन या रिग्रेशन लगा दिया, राइट? कोरिलेशन या रिग्रेशन लगा दिया। अभी कौन है, जल्दी आना, राइट? नेक्स्ट टाइम। ओके, तो अभी क्या हुआ कि देयर आर द चांस, राइट, कि ये 30 बच्चे हैं ना हमारे, फॉर एग्जांपल 300 बच्चे, राइट? देयर आर द चांस कि ये 30 बच्चे ऐसे आए ना, बेचारे उन्होंने सोशल मीडिया, क्या उनका पास मोबाइल भी नहीं है, उनके पास मोबाइल भी नहीं है, और उनका रिजल्ट मतलब मोबाइल भी नहीं है और उनका रिजल्ट खराब आया। इनका रिजल्ट क्या आया? खराब आया, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए। तो ऐसा हो सकता है ना, जनरली नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि ये 30 बच्चे जो हमने कलेक्ट किए वो एकदम जो नॉर्मल है इससे रिवर्स बताते हैं, क्योंकि ये 30 ऐसे आ गए जिसके पास सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं लेकिन मार्क्स भी कम है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सोशल मीडिया का यूज कम करेंगे तो मार्क्स भी कम हो जाएंगे, ऐसा तो कोई रिलेशनशिप ऐसा हम डेवलप कर ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ देयर आर द 100% चांसेस कि मैं दूसरे 30 बच्चे लूं, राइट? क्योंकि 300 मेरे पॉपुलेशन है, राइट? 30 बच्चे आई एम टेकिंग फ्रॉम अदर बैच, ये 30 नहीं लेते, दूसरे 30, तो उनका सोशल मीडिया का यूसेज है और उनका रिजल्ट डाउन है, ऐसा भी हो सकता है ये 30 वाले में से, राइट? कई 30, ये एक्सट्रीमिस्ट है, हाँ, ये एक्सट्रीम है। ये 30 वाला ऐसा है ना, सोशल मीडिया मतलब 20 आवर्स सोशल मीडिया, सोते भी नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट इसमें क्या आता है? हाईएस्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि हमने ये सैंपल चेंज किया। ये 30 की जगह ये 30 आ गया, ये 30 की जगह ये 30 आ गया, तो हमारा क्या होगा? मिशन कश्मीर फेल हो जाएगा, राइट? तो क्या है, ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, ये वेरिएशन बाय चांस आ रहा है, राइट? कौन से 30 बच्चे आएंगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसको रैंडमाइज करेंगे हम। क्या करेंगे? रैंडमाइज करेंगे। रैंडम और सैंपलिंग की टेक्निक होती है, राइट? रैंडमाइज करेंगे। इसमें ये 30 बच्चे आ गए पहले वाले, तो गलत हो जाएगा, ये आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आ जाए। हाँ, मिक्स में कभी आ जाए एवरेज वाला तो सही रिजल्ट आएगा। मतलब क्या हुआ? अभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट? मतलब क्या हुआ? और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आगे है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट कि ये 30 बच्चे मेरा परफेक्ट रिजल्ट लाएंगे, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंस। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, वो बताता है कि कितना आप बाय चांस
करते हो कि बाय चांस कितना ये हो सकता है कि 30 बच्चे रॉन्ग आ जाए, राइट। तो 100 टाइम्स हम चेंज करें, क्या चेंज करें, सैंपल, ये सैंपल लिया उसका, ये सैंपल लिया उसका, ये सैंपल लिया, ये सैंपल लिया, ये सैंपल लिया, ये सैंपल लिया, 100 टाइम्स, इसमें ही 300 बच्चे में से 100 टाइम्स हम चेंज करें तो देयर आर 5% चांसेस आउट ऑफ 100, 5% चांसेस कि आप गलत हो, ऐसा हो सकता है ना, 5%। मतलब यू चेंज द सैंपल्स and there are chances that you are wrong in inferring, मतलब आपको गलत मैसेज मिल जाए या गलत डेटा कलेक्ट हो जाए या गलत उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये 5% इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल है वो हम सेट करते हैं। सोशल साइंस में अलग अलग होता है, राइट। सोशल साइंस में हमारा ये 5% है। अगर हेट्रोजिनिटी होती है ग्रुप में, हेट्रोजिनिटी मतलब क्या है, वैरायटी होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है, राइट। मतलब एक्सट्रीमिस्ट है, कोई बच्चा बहुत सोशल मीडिया का यूज करता है, उसका मार्क्स शायद बहुत अच्छा है या बहुत कैटेगरी करी, और मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, सब है, तो उसको हेट्रोजिनिटी बोलते हैं, राइट। अलग अलग विविधता बोलते हैं। ज्यादा विविधता होती है ना, तो सोशल साइंस में वी कैन टेक 10% एज ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब ये अब अगर चेंज करेंगे, देयर आर 10% चांस कि हम गलत हो सकते हैं, राइट। फिर से एक एग्जांपल समझाता हूं। जब जज उसका जजमेंट देता है तो देयर आर 5% चांस कि वो गिल्टी को क्या बताएगा, इनोसेंट बताएगा, या इनोसेंट को क्या बताएगा, गिल्टी बताएगा। ये 5% चांस है। हाँ, 95% इज ए कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब वी आर कॉन्फिडेंट के 95% हम क्या करेंगे, हम सही है, बट 5% चांस में जज से गलती हो जाती है, राइट। और अगर ये जानना है ना 5% वाला, तो आपको एक मूवी का नाम लिख दो, एक रुका हुआ फैसला। You can write it down, the name of movie, एक रुका हुआ फैसला। वो आपको YouTube पे मिल जाएगा। थोड़ा देखोगे ना तो खत्म करके ही आप उठोगे। मतलब कॉन्फिडेंट कितना है एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या बताता है कि आप कितने चांसेस है, राइट। This means that there are 5% chances that you will accept your alternate hypothesis when null hypothesis actually true. No relationship है, लेकिन आप इंफर करते हो कि रिलेशनशिप है, ऐसे चांस आउट ऑफ 100 5% है, राइट। तो ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट साइंस नहीं होता है। लेकिन अगर हम स्पेस यूज करते हैं ना, स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब अभी वो हवाई जहाज करके आया ना, वो स्पेस में जाके आया, राइट। और हमारा जो गोला बारूद है या लेजर पॉइंटर गाइडेड मिसाइल है, ये इसमें ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होता है, 0%। मतलब जहां जानी है वहीं जानी चाहिए। इसमें प्लस माइनस हो गया ना 5%, 5% इधर हो गया ना, तो सैनिक की जगह वो सिविलियन मर जाएंगे, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां लेवल ऑफ साइंस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0% होता है। जरा भी वेरिएशन होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हम तो सोशल साइंस है भाई, मार्क्स, सोशल साइंस के मार्क्स, मतलब सोशल मीडिया के अवर्स बढ़े और मार्क्स घटे, कुछ मैंने बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखते हैं, राइट। मतलब कि ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि अगर हम सैंपल चेक कर करके करते हैं 100 टाइम्स, तो देयर आर 5% टाइम्स, मतलब 5 बार ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूं कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं रिलेशनशिप है। मतलब अगर वो बंदा, मतलब द पर्सन इज गिल्टी,
मतलब इसने खून किया है लेकिन वो छूट जाता है, लेकिन वो 5% चांसेस है, राइट। तो ये होता है। तो अगर ये अल्फा लेवल, उसको बोलते हैं अल्फा लेवल, the smaller the significance level, the greater the burden of proof needed to be reject the null hypothesis. In other words, to support the alternative hypothesis. जितना सैंपल कम होगा ना, इतना दिक्कत होगा, मतलब ये गड़बड़ी ज्यादा होगी। अगर सैंपल ज्यादा है, मान लो मतलब ये 300 बच्चे हैं हमारे, मान लो कि मैंने 200 बच्चे लिए, यहाँ इतने बच्चे लिए, तो देयर आर ग्रेटर चांसेस कि ये नॉर्मल हो जाए और ये सपोर्ट करे, राइट, ये सपोर्ट करे। ज्यादा ज्यादा लेना चाहिए। अगर मैं दो बच्चे को पूछूंगा, राइट, ओनली 2 सैंपल्स आउट ऑफ 300, 2 सैंपल्स नहीं ले सकते, लेकिन मान लो कि लिया, तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा सैंपल, राइट। तो सेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इन सोशल साइंस वी कीप इट 5%, इसको बोलते हैं 0.05। क्या बोलते हैं, 5% मतलब 0 परसेंटेज में लिखे तो ऐसे आता है, अमाउंट में लिखे वैल्यूज में तो 0.05। इट मींस दैट वी आर 95% कॉन्फिडेंट कि हम जो बोलेंगे वो सही होगा, राइट। तो ये सेट द सिग्निफिकेंस लेवल। और कुछ भी आप पढ़ोगे ना, ऐसे सिंपल तरीके से आप नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट, अभी तो हमने बोल दिया कि नई डिफरेंस है, ऑल्टरनेट में बोल दिया डिफरेंस है। हम बोलते हैं कि 5% हम रॉन्ग जा सकते हैं, ये तो सब में जनरल होता है। अभी क्या करना है, हमको डेटा कलेक्ट करना है। वी नीड टू कलेक्ट द डेटा। एक्चुअली collection of data is very important because it depends whether how you collect the data. If correctly you are correct the data, then definitely you can give better answer to your hypothesis, right? तो collection of data next step है, और 3 स्टेप जो है ना वो कॉमन है, चौथा स्टेप भी कॉमन है, राइट। और चौथा स्टेप्स है वो डिसाइड करेगा कि भाई आगे का जो है वो क्या सही है, H0 सही है या H1 सही है, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सैंपलिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पॉपुलेशन स्टडी या सेंसस स्टडी नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और सैंपल से इन्फर करते हैं। आपका ब्लड 2-4 ड्रॉप से में मतलब जो टेस्ट करते हैं वो बताएगा कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है और कितना कंटेंट है आपके ब्लड में। तो सैंपलिंग लेते हैं, तो सैंपलिंग लेते हैं और बाद में इट शुड बी ए रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो पॉपुलेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यहाँ इतने ही ये इसमें से सैंपल लो, इतना होना चाहिए, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना तो क्या होगा, आपका रिजल्ट गलत आएगा। एग्जाम्पल से समझा देता हूं क्यों गलत आएगा। मान लो कि यूनिवर्सिटी को ऐसा लगा कि भाई ये दलवाड़ी साहब कैसा सिखा रहे हैं, राइट। ये एग्जाम्पल है, हाँ, इसमें कोई रिलेशन मत जोड़ देना कि कैसा सिखाता है, राइट। और उसका रिपोर्ट लेके आओ और टीचर को बोलो कि वो रिपोर्ट लेके आए, राइट, कि वो कैसा पढ़ाता है। तो 5 क्वेश्चनर मुझे दी, 5 क्वेश्चनर, राइट, जो बच्चे से पढ़ा नहीं है। तो अगर मुझे दी ना तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे फेवरेट 5 बच्चे हैं ना, जो हर रोज आते हैं, मुझे गुड मॉर्निंग कहते हैं और मुझे पहचानते हैं, मेरे चचा का लड़के का वो इतना 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 रिलेशनशिप में है, मैं सब उनको दे दूंगा, लो भर लो। तो क्या करेंगे वो, अरे वाह वाह सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये करते वो करते हैं, राइट, बहुत अच्छा बोलेंगे, राइट। बाद में रिजल्ट क्या होगा, बहुत अच्छा। बाकी का 95% को पूछेंगे ना, अरे यार खराब पढ़ाते, अरे यार खराब पढ़ाते, अरे यार खराब पढ़ाते। एक्चुअली क्या है, बिलो एवरेज है, मान लो बिलो एवरेज है, लेकिन ये 5 लोग क्या करेंगे, 5 लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छा। तो ये बायस्ड हो गया, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसमें क्या आना चाहिए, जो नेगेटिव बोलते हैं वो भी आना चाहिए, जो पॉजिटिव बोलते हैं वो भी आना चाहिए, और इसमें रेंडमाइज होगा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूं,
मैं सिर्फ किसको देता हूं, उसको ही देता हूं। वैसे ही पॉलिटिकल होता है, ये जनरली ये पॉलिटिकल भी ऐसा होता है। 5 लोग इतना विरोध करेंगे ना, जैसे बॉम्ब पड़ गया, लेकिन उसको ही तकलीफ होती है, वो 5 ही तकलीफ देते हैं, बाकी को सब शांति होती है, राइट। तो ऐसा होता है। तो हम अगर जज करें कि नहीं नहीं बहुत ये है, मतलब इंडिया में बहुत एनआरकी है और बहुत झगड़े हैं, वो 5 लोग ही ऐसे होते हैं जो उसका ना ये प्रॉब्लम होता है, बाकी 95% बहुत अच्छी तरह से जीते होते हैं। तो हमें जब भी ये क्या सिखाता है, हमें जब भी हमारी लाइफ के बारे में या किसी क्षेत्र के बारे में या कंट्री के बारे में, अपने एरिया के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी अगर हमको इन्फर करना है ना, तो फ्यू ओपिनियन और फ्यू लोगों का ओपिनियन से नहीं चलना चाहिए। जैसे मान लो कि आपकी मम्मी है, राइट, बहुत सारा आपके मतलब आपका डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस किया, ये किया, अगर वो गुस्से से कुछ बोल देना, तो बोलने से आप यू शुड नॉट ना कंक्लूड कि मम्मी बहुत खराब है, राइट। यू शुड नॉट कंक्लूड बिकॉज इट्स नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव, राइट। ये तो मोमेंटरी होता है और पीछे तो बहुत अच्छा सारा प्यार हो सकता है। आई वांट टू से दैट वो रिप्रेजेंटेटिव एवरेज देखो, पहले से देखो कितना आपको हेल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, ये सब तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। मतलब एक सैंपल से आपको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए डेटा कलेक्ट करो ना रिसर्च में, तो ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब सब आने चाहिए, नहीं के एक ग्रुप, राइट। वरना तो मैं बहुत स्मार्ट हूं, 5 लोगों को पूछ लूंगा कि आप 5 और भर ले क्वेश्चनर और मेरी वाई कर दे, और यूनिवर्सिटी को मैं रिपोर्ट दे दूंगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, राइट। आउटस्टैंडिंग टीचर इज अ टीचर वो स्टैंड्स आउट, मतलब क्लास में नहीं जाता है वो, ये जोक था, राइट। ये मैंने रिफ्रेशर के कोर्स में ये एक टीचर ने बोला था कि आउटस्टैंडिंग टीचर क्या होता है, जो बहुत आउट ही रहते हैं वो। चलो, तो समझ में आ गया, ये सैंपलिंग रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, प्लस माइनस सब आने चाहिए, राइट। तो ये जो मैं अगर ये रिसर्च कर रहा हूं, तो इसमें मेल फीमेल भी आनी चाहिए, राइट। सेमिस्टर 3 के जो होशियार बच्चे हैं वो भी आएंगे, मिडल बच्चे होंगे वो भी आएंगे, जो मांड PASS हुए, पास हुए, वो भी आएंगे। अगर वो साथ में होगा तो मुझे पता चलेगा, वरना मैं बहुत सारा मतलब सब टॉप 10 ले लू ना, टॉप 10 जो रिजल्ट में है उसका सर्वे करूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं सोशल मीडिया करो, बाद में मैं बोलूंगा सोशल मीडिया का यूज करो, तो बेचारे जो नहीं करते हैं ना, वो कम करते, वो भी फेल हो जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि मेरा इन्फरेंस स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस गलत हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। तो ये इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है, ये रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है। ओके, अपना वॉइस बंद कर दो, कौन है? हाँ, ओके। So to taste, for example, to taste the difference in average height between men and women, your sample should have equal proportion. मतलब क्या हुआ कि भाई मैं जो गर्ल्स एंड बॉयज के जो मार्क्स है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसके वेट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मुझे इक्वल लेना चाहिए। मैं एक बड़ा मतलब एक क्या बोलते हैं फैटी सा एक बॉय ले लूं और 5-6 गर्ल ले लूं, या बड़े बड़े जाड़िये ले लूं ना, बॉयज में 5 जाड़िये होते हैं ना, सब ग्रुप में होते हैं, तो वो ले लूं, और पतली पतली बच्चियां 50 ले लूं, तो एवरेज इसका भी निकलेगा, एवरेज इसका भी निकलेगा, और बाद में लगेगा कि नहीं बॉयज आर हैवी, राइट। उल्टा भी हो सकता है, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको इक्वल प्रोपोर्शन लेना है, क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं मैन और वुमेन की हाइट के बारे में, तो इक्वल लेना चाहिए। मतलब ये और भी चाहिए कि भाई अलग डिपार्टमेंट, अलग यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी, राइट, गुजरात, अदर इंस्टीट्यूट में क्या हो सकता है,
राइट, ऐसा कंसीडर करके भी हमको सैंपल लेना चाहिए, मतलब कलेक्ट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, जो 300 बच्चे हैं ना, इसमें से 100 बच्चे मैं सिलेक्ट करूंगा, कैसे, रैंडमली या कन्वीनियंटली। जनरली कन्वीनियंटली नहीं करना चाहिए, लेकिन रैंडमली, तो इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, राइट। तो मैं 100 बच्चे को ये क्वेश्चनर डालूंगा और 100 बच्चों की क्या करूंगा, उसका रिजल्ट का लाऊंगा। तो पहला बच्चा है, वो 2 घंटे सोशल मीडिया का यूज कर रहा है और उसके मार्क्स 7 CGPA है। दूसरा बच्चा है 3 घंटे 6। तीसरा बच्चा है 4 आवर्स कर रहा है, 8 मार्क्स, 8 CGPA। तो ऐसे ऐसे कलेक्ट करूंगा, मतलब ये क्या है, मैं कलेक्ट करूंगा, इस स्टेप में मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। नाउ स्टेप 5, डेटा कलेक्ट हो गया। अभी तो टेस्ट करना है ना, उसको सोनोग्राफी करना है या ब्लड टेस्ट करना है या यूरिन टेस्ट करना है या कोई और टेस्ट करना है, राइट। जो फिजियोथेरापी से थोड़ा दौड़ा के करते हैं, ऐसा करो, हाथ ऊपर करो, नीचे करो, तो ऐसा कुछ करके ना डिसाइड करते हैं ना कि कौन क्या है एक्चुअली प्रॉब्लम। तो वी नीड टू सिलेक्ट द टेस्ट, कौन सा टेस्ट करे, राइट। तो डिसाइड एंड परफॉर्म ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये 2 फैमिली अलग अलग है, राइट। पैरामेट्रिक टेस्ट जो हमारे पैरामीटर में फिट होती है, मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल डेटा होता है और कंटिन्यूअस डेटा होता है और इन सैंपल जो लिया होता है वो रैंडमाइज बेस पे लिया होता है विदाउट एनी बायस, अगर ये सब है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे टू नो द एसोसिएशन, टू नो द डिफरेंस, टू नो द इम्पैक्ट, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो हम दूसरी फैमिली में जाएंगे जिसको बोलेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो उसकी भी फैमिली में बहुत सारे हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट है, रन टेस्ट है, कुस्कर वालिस टेस्ट है, बहुत सारे हैं। मतलब अभी बोलूंगा तो आप चक्कर खा के ना यहाँ गिरोगे, लेकिन बाद में आएगा तो हम बताएंगे कि क्या क्या टेस्ट होते हैं। और पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट होते हैं, जो चाय का टेस्ट, चाय नहीं होता, टी टेस्ट होती है, एनोवा होता है, रिग्रेशन होता है, कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन होता है, और बहुत सारे एडवांस टेस्टिंग होते हैं, राइट। तो इसमें से क्या ले हम, राइट, तो वो हम डिसाइड करते हैं, राइट। समझ में आ गया, वो केस करते हैं। बाद में क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये टी टेस्ट करना है, और मान लो कि हमारा सोशल मीडिया का अवर्स एंड मार्क का इंपैक्ट करना है ना, तो हम 2 टेस्ट कर सकते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्टैंडर्ड नंबर, स्टैंडर्ड 12, स्टैटिस्टिक्स, यूनिट नंबर 2, पीरियड नंबर 35, इसमें सीखे हैं आप, राइट। लेकिन उस वक्त पता नहीं था ना कहाँ यूज करना है, तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि ये whether these have any association or any relation between marks or not, ये करेंगे या रिग्रेशन करेंगे। मान लो कि हमको मेल एंड वर्सेस फीमेल का वेट जानना है, वेट, एवरेज वेट इक्वल है कि नहीं है, उसके लिए टी टेस्ट करेंगे। टी टेस्ट ऐसे नहीं लिखते हैं, स्मॉल टी लिखते हैं। ये स्मॉल टी क्यों है उसका भी हिस्ट्री है, मैं बता देता हूं। चलो, स्मॉल टी एक्चुअली वो स्टूडेंट्स टी टेस्ट है, स्टूडेंट्स टी टेस्ट। एक प्रोफेसर था, उसका जो लड़का है ना, वो रिसर्च स्कॉलर जो पीएचडी करता है, उसने ये टेस्ट डेवलप किया था, और उसको मतलब वो जो टीचर है उससे पावरफुल था, तो वो बेचारा उसका नाम नहीं दे पाया, राइट। जैसे कुस्कर वालिस, तो कुस्कर वालिस ने ये बनाया है। पियर्सन कोरिलेशन, तो पियर्सन ने ये कोरिलेशन बनाया है, राइट। तो उसका पियर्सन कोरिलेशन हुआ है, ओके। तो सब जो ये सब टेस्ट बनाते हैं ना, तो उसका नाम आ जाता है।
लेकिन ये बेचारा स्टूडेंट था, उसने लिखा, रिसर्च पेपर भी लिख दिया और लिख दिया स्टूडेंट्स टी टेस्ट। क्या लिखा? स्टूडेंट्स टी टेस्ट। और वो बेचारा स्मॉल था ना, तो इसलिए टी स्मॉल लिखा। इसलिए वो अगर टीचर होता तो ये ऐसा टीचर लगता। बेचारा स्मॉल था तो मतलब एज ए स्टूडेंट था, इसलिए टी टेस्ट लगाया। तो हम क्या करेंगे, मेल फीमेल के लिए पैरामीट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट यूज कर सकते हैं, और जो मीन वैल्यू को डिफरेंस करके ये हमको बताता है, राइट। तो हम क्या करेंगे 5 स्टेप में, कौन सा टेस्ट लेंगे भैया? तो इसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसमें टी टेस्ट। तो जैसा हमारा मेजर करना हो वैसे हम टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब वो स्टैटिस्टिक्स जो मेथड है वो हम करेंगे। और ये क्या देता है भाई? ये क्या देता है? जैसे कोई क्या हो, मलेरिया हो गया तो आपका प्लेटलेट्स चेक करते हैं ना, और ब्लड प्रेशर और क्या, हीमोग्लोबिन, तो उसका वैल्यू होता है, सबका वैल्यू होता है ना। तो इसमें टेस्ट में भी क्या होता है? वैल्यू होता है, और वो वैल्यू को बोलते हैं पी वैल्यू, राइट, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। एक्चुअली वो क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आता है, उसका रिजल्ट आता है, और एक टेबल होता है, एक स्टैंडर्ड ये टेबल होता है जिसमें आइडियल वैल्यू लिखा जाता है, राइट। और ये टेस्ट वैल्यू होता है, जो हम टेस्ट करते हैं उसका वैल्यू, और टेबल वैल्यू, और डिफरेंस जो होता है उसको पी वैल्यू बोलते हैं। पी वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी वैल्यू, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू दोनों में हमको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है, राइट। प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। मतलब कि हीमोग्लोबिन का क्या वैल्यू है, बस। और बाद में साथ में टेबल होता है ना, आइडियल वैल्यू, इससे इतना आइडियल वैल्यू है। प्लेटलेट्स क्या है आपका, रिपोर्ट आता है ना, और बाद में लिखते हैं आइडियल इतना है। तो ये जो है ना ऐसे ही होता है, और बाद में हमको पता चलेगा कि प्लेटलेट्स कम हो गए, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, ब्लड इतना हो गया है, ये कम है, वो ज्यादा है, और बाद में उसको सप्लीमेंट दे देकर ठीक कर देता है, राइट। तो यहां हमको जानना है, राइट। तो ऐसा हम वैल्यू काउंट करेंगे, ये पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू काउंट करेंगे, और हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू के बाद हम ड्रॉ करेंगे क्या? कंक्लूजन, हीमोग्लोबिन ज्यादा है या नहीं है, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया है या नहीं है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन अ वेट ऑफ मेल एंड फीमेल है या नहीं है। तो हम ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, वो पी वैल्यू पे ध्यान रहता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू पे। अगर पी वैल्यू, राइट, अगर पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, so we reject the null hypothesis। अभी सर ये चक्कर आ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं आप? तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर 0.05 से कम आ रहा है ना, तो वो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या था कि भाई there is no relationship between your social media hours usage with the marks, on marks difference नहीं है। हमारा क्या था null hypothesis कि भाई नहीं है null hypothesis। ये वैल्यू क्या है 0.05, मतलब क्या हुआ? रिजेक्ट, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इंपैक्ट पड़ता है। मतलब आप बढ़ाएंगे ना सोशल मीडिया का इफेक्ट, तो आपका मार्क्स घट सकता है। यह ऐसे भी हो सकता है कि आप बढ़ाएंगे ना तो आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है। कौन सी साइड है वो हमने वन टेल टू टेल नहीं लिया, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। इट मीन्स दैट वी रिजेक्ट। अभी ये क्वेश्चन, सर ये क्यों ये वैल्यू ये लिया 0.05, ये क्यों लिया? क्योंकि ये हमने क्या, हमारा था अल्फा था, हमने सेट किया था ना अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम है तो रिजेक्ट करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 10% लिया ना, और ये पी वैल्यू आई उससे कम, लेस देन 10, 0.10,
तभी हम करेंगे। उस वक्त 0.5 होगा ना, तो एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। P value is lesser than or equal to significance level, it reject the null hypothesis in favor of your alternative hypothesis। तो ये ऑलरेडी समझा दिया। लेकिन हाइपोथेसिस, ये पैराग्राफ क्या कहता है पता है? कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के वक्त हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि रिजेक्ट और एक्सेप्ट, क्योंकि इसमें होता है क्या, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ऐसे नहीं बोलना है, ये सब बोलते हैं कि ऐसे नहीं बोलना है। क्या बोलना है? वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस की जगह वी कैन नॉट एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। उल्टा बोलना है, उल्टा। वी कैन नॉट, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस का मतलब वी कैन नॉट एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। और एक्सेप्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेप्ट होता है, तो एक्सेप्ट नहीं बोल रहा था, वी फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। वी फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये आपको बच्चा अभी पता नहीं चलेगा, जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना ऐसा पता चलेगा, मतलब करियर में आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा, राइट? तो ये है। तो हम ड्रॉ कंक्लूजन किया, एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया। एक्सेप्ट हुआ मतलब कि है भाई डिफरेंस। देखो ध्यान में रखना, सोशल मीडिया का यूज मत करना, उसका नेगेटिव मार्क्स पड़ता है, मार्क्स पे इंपैक्ट पड़ता है। तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अगर ये रिजेक्ट हो गया मतलब एक्सेप्ट हो गया मतलब डिफरेंस नहीं है, अरे यार तुमको जो करना है करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 2 घंटा 3 घंटा सोशल मीडिया का यूज करो, डोंट वरी अबाउट मार्क्स, बिकॉज मार्क्स इज हैव नॉट इम्पैक्ट, मतलब मार्क्स हैव नॉट नो इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, योर सोशल मीडिया यूसेज। तो हम ये कर सकते हैं। और बाद में लास्ट स्टेप लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च। तो प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स में हम क्या करेंगे वो बता देंगे, राइट? तो जो रिजल्ट सेक्शन होता है ना, रिजल्ट सेक्शन, इसमें हम समरी देते हैं कि भाई हमने ये हाइपोथेसिस थी, ये नल हाइपोथेसिस थी, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी, ऐसे लिखता हूं। ओके, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, राइट? और हमने ये टेस्ट यूज किया था, उसका टेस्ट का वैल्यू इतना इतना आया है वो टेस्ट का, और ये इन्फरेंस ये है। तो ये सब ये प्रोसीजर हमको कहाँ बनानी है? फाइंडिंग्स में और रिसर्च मेथोडोलॉजी में, फाइंडिंग्स में। बाद में हम कंक्लूड करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो नल हाइपोथेसिस था, नो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन व्हाट मार्क्स, अगर ये एक्सेप्ट होता है मतलब वी आर फेल्स टू रिजेक्ट, इन दैट केस बोलेंगे कि भाई उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बिंदास रहो। अगर होता है तो हम बोलेंगे कि देखना इसके इंपैक्ट पड़ती है। तो ये क्या बताएंगे हम? फाइंडिंग्स में बताएंगे। फाइंडिंग्स कहाँ कहाँ होता है भाई? रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं, तो एमफिल का डिसर्टेशन होता है, पीएचडी का थीसिस होता है इसमें, राइट? रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो रिसर्च पेपर में होता है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स के फाइंडिंग्स में ये सब हमको क्या करना पड़ेगा? नरेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा लोगों को कि हमारी हाइपोथेसिस ऐसी थी, लेकिन हम बताते हैं कि ये नहीं है या ये है। और हमको एग्रीमेंट भी करना है कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो था ना, वी आर इन ट्यून, मतलब उसके साथ जा रहे हैं या अगेंस्ट रिजल्ट आ रहा है, राइट? किसी एक्स ने फाइंड किया कि भाई सोशल मीडिया का यूज करो ना तो आपका मार्क्स कम होता है, तो ऐसा 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 इसने, जब हम ये फाइंडिंग करते हैं उसने वो फाइंडिंग किया था। अभी हम क्या करेंगे? नहीं इम्पैक्ट होता है, तो हमारा इम्पैक्ट नहीं होता है विच इज अगेंस्ट ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड, इसने बोला उससे हमारा अगेंस्ट रिजल्ट आया। तो ऐसे करके भी बताना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये 7 स्टेप्स आई होप के आपने समझ गए होंगे। पहले क्या करना है? नल हाइपोथेसिस। सेकंड, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। थर्ड, सिग्निफिकेंस लेवल मतलब अल्फा लेना है। बाद में
कलेक्ट करना है डेटा, बाद में कौन सा टेस्ट यूज करेंगे वो करेंगे, बाद में उसका पी वैल्यू निकालेंगे, टेस्ट करेंगे, पहला डिसाइड करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद अल्फा को देखेंगे कि कितना है, तो डिफरेंस लगा के पी वैल्यू से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वेदर वी आर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। इसकी जगह वी आर फेल्स टू एक्सेप्ट और फेल्स टू रिजेक्ट, और बाद में हम क्या करेंगे, हमारी स्टडीज में वो चिपका देंगे। तो प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स। सो दीस आर 7 steps of your hypothesis testing procedure, right? I hope you understood it properly. आपको ये समझ में आया होगा। Any question from your side? Any question from your side? सर Yeah. सर 6th में आपने पी वैल्यू कही, वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमको डिसाइड करनी है। सोशल साइंस में 5% we take as a normal है, is a customary to take 5% in social, even if in my research I am using 5%. okay, तो सोशल स्टडीज मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, हमारा कॉमर्स होता है, सोशियोलॉजी होता है, सोशल वर्क होता है, ऐसे जो सोशल स्टडीज होते हैं ना, इसमें हम 5% लेते हैं, राइट? तो 5% इज नॉर्मल वैल्यू। अगर बहुत हेट्रोजिनिटी होती है तो हम लेते हैं 10%, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? राइट, सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। यस, बोलो। सर आपने 3 जो रिसर्च लिखने के बोले हैं ना, हाँ उसमें मैंने कोविड और स्मॉल ट्रेडर्स के बारे में लिखा था। हाँ, तो उसको उसमें और कैसे लिख सकते हैं? आपने फिर से लिखने को बोला है ना, इसलिए। हाँ, तो क्या लिखा था? चलो मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं क्योंकि पास्ट का है ना। चलो, क्या लिखा था